Okay, so my screen is visible to you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Okay, so I think now I would like to give you some brief background of modular arithmetic. I think most of these things you may be knowing it, but I'll just quickly recall. And then I also give you an idea how to construct a finite field. So, and I will try to do it through examples so that you really understand what is going on. Okay. So, if I look at set of all integers, okay, and divide it by a fixed integer n, okay, n is a positive integer, then what happens? We know that we get integers modulo n consisting of 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. These are equivalent classes, right? And actually operations that we can do, all these two operations, addition modulo n and multiplication modulo n. So what do you mean by modulo n? That means we add the two numbers and divide it by n and see the possible remainder. Okay, so let us take the example n is equal to 2. So we get z2 with entries 0 and 1. Okay, so one important thing about z2, what we can do, we can make these tables actually. Plus 2, 0, 1, 0, 1. So 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, and 1 plus 1 is 2. 2 modulo 2 is 0. Okay. Similarly, I can look at multiplication table. Okay, modulo 2, 0, 1, 0, 1. So 0, 0, 0, 1. So now, in this table, if I look at carefully, 0 is the additive identity. So I can, encircle it, 0 here and 0 here. So this tells us that 0 is self-invertive, right? 0 plus 0 is equal to 0 with respect to addition. Okay, and also 1 is inverse of 1 because 1 plus 1 is 0. Okay, with respect to multiplication, I look at non-zero, so I encircle this 1, and this tells us that 1 into 1 is equal to 1. 1 is inverse of itself with respect to multiplication. So that means this set is nothing but a field. Okay, every element has a inverse. Okay, we go a little bit further and we try to look at integer modulo 3. Okay, so now the entries are 0, 1, 2. Operations are plus 3, mod 3, and so I can again make tables 0, 1, 2, 0, 1, 2, addition modulo 3, 0, 1, 2, 1, 2, 1 plus 2 is 3, mod 3 it is 0, 2, 2 plus 1 is 3, mod 3 it is 0, 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4. Yes, any question? No, sir. Okay, 2 plus 2 is 4, mod 3 it is 1. Similarly, so just stop me whenever you have any question, mod Sir, 3. I have a question. Yeah, ask me. Sir, what did you say about field? So field, I am saying that normally in a very loose sense, field is a set of numbers where we can do all the four operations: addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, so you can And do see. we have to? Yes, sir. So you can see that here with all the elements 0 and 1, I can do all the four operations. Yes, sir. Right. So this is a field. Of course, we cannot divide by 0, so that is excluded, right? But Yes, sir. otherwise, we can do every operation. So we can do all these four operations. That's why this is a field. Got it? Okay, sir. Now, what about
integer modulo 3. So now 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0 into 1 is 0, 0 into 2 is 0, 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, this is 0, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. So 4 mod 3 is 1. Now again, I look at additive INT in this table, addition table. These are the ones. So I can see 0 plus 0 is 0. So 0 is self-inverting with respect to 0. 1 and 2 are inverses of each other, right? Because 1 plus 2 or 2 plus 1 the same thing as 2 plus 1, right? So 1 and 2, 2 and 1 are inverses of each other. Now in case of multiplication, I look at multiplicative INT, which is 1 here. Okay. So every non-zero element should have an inverse. So I can clearly see that 1 into 1 is equal to 1. So inverse of 1 is 1 and inverse of 2 is 1, right? Now one very basic question, let me get some space here. So now we can look at some very basic question. What is the value of 1 minute? Yeah. What is the value of 1 by 2? What is 1 by 2 here? Is it 0.5? Yes, answer me. No, sir. What is 1 by 2? No, no. So 0. So 1 into 2 inverse. 0 तो नहीं होगा, 2 आएगी. 2 आएगा. 1 by 2 is equal to 2. So Because ठीक है. inverse of 2 is 2. 1 into 2 inverse. Yeah, because of this relationship, right? 2 into 2 is 1. 2 का inverse 2 है, right? Yes, sir. So 1 by 2 is 2. So ये थोड़ी सी अलग फील्ड है, right? I mean ये finite फील्ड है, right? तो जो डेली हमको एक्सपीरियंस है कि 1 by 2 is 0.5, ऐसा नहीं है यहाँ पे, right? Got the idea? Okay. So now you can see that every non-zero element 1 का इन्वर्स भी है, 2 का इन्वर्स भी है, राइट? 0 का तो हमको देखना नहीं है इन्वर्स, और एडिशन में हमको सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. So this is a field, right? Now we go to the next choice. Next choice है n is equal to 4. So G4. Entries are 0, 1, 2, 3. Addition modulo 4, integer modulo 4. So I can make tables again. Plus 4, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 2. 1 plus 2 is 3. 1 plus 3 is 4, which is 0. 2, 3. 2 plus 2 is 4. Modulo 4, it is 0. 2 plus 3 is 5. Modulo 4, it is 1. 3. 3 plus 1 is 0. 1. 3 plus 3 is 2. Similarly, I can do for multiplication modulo 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 0, 0, 0. Okay. 0, 1, 2, 3. 0, 2. 2 into 2 is 0. 2 into 3 is 1. 3 into 0 is 0. 3 into 1 is 3. 3 into 2 is 2. And 3 into 3 is 9. 1. Modulo 4 is कितना होगा? 1. 1. 1. Good. Okay, so now let us
So the question is it a field? Now मेरे को बताओ तुम लोग No, सारी sir. प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? No, sir. Inverse of 2 is not. Inverse of 2 is not there, right? Correct. So correct observation. तो बाकी तो सब है, यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स 0 का लिया, यहाँ पे 0 को एनसर्किल कर दिया, तो देन आई नो, राइट? तो 0 + 0 is 0, 1 + 3 एक और 3 दूसरे का एक दूसरे का इनवर्स है, दो भी 2 + 2 is also 0, 2 का इनवर्स 2 itself है with respect to addition, right? But with respect to multiplication, अगर हम यहाँ पे 1 को सर्किल करें, राइट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? 1 का इनवर्स तो 1 है, यहाँ पे हमको आना चाहिए, ये आई थिंक गड़बड़ है क्या? दो, Sir, yes, sir. Gurula. हाँ, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, Well, दिस शुड बी 2 हियर, राइट? यस. Yes, sir. Sir Praveen texted me and he's telling me that he's sick, so he won't be able to attend this lecture. अच्छा, कहीं गया हुआ है? He's sick. Oh, अच्छा, he is sick, no problem. Okay, fine. Yes, sir. Okay, so now you understood it, right? यहाँ पे 1 का इनवर्स तो 1 है और 3 का इनवर्स 3 है, राइट? 2 का कोई इनवर्स नहीं है, राइट? So this is not a field. So now my question is, can you give me an idea how to construct a field with 4 number of elements? Do you have any idea? Sir, could you please repeat the question? Yeah, my question is how to construct a field with 4 number of elements, because we know that this is not a field. आगे का देख लेते हैं, तब तक इस पे सोचो, मैं आता हूं इस पे, ठीक है? n = 5 करेंगे तो क्या होगा? इंटीजर मॉडल 5, मेरे को बताओ, विल इट बी ए फील्ड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? आई थिंक तुम अपने में कैलकुलेशन करके बता सकते हो, इज इट ए फील्ड? Is it a field? Yes, sir, it is. Good. It is a field. Because it satisfies all the properties, हम वो टेबल बना के देख सकते हैं, right? What about this G6? Sir, I guess no. no, sir. क्या मतलब काउंटर एग्जांपल क्या होगा? किस चीज का इनवर्स नहीं होगा? I mean, you can clearly see that 2 into 3 is equal to 0. This is a problem here, right? You know why? See, because what happens, वहां पे था 2 into 2 is equal to 0, right? Z4 में, if you Yes. remember Z4 का केस में, और यहाँ पे क्या है 2 into 3. So basically क्या होता है, किसी भी सेट में अगर ये प्रॉपर्टी हो कि a into b is equal to 0, फील्ड में ये प्रॉपर्टी होती है, if a product of two number is equal to 0, will imply that either a is equal to 0 or b is equal to 0. Okay. ये फील्ड की प्रॉपर्टी होती है. This is a property of a field. All the time this is true. यहाँ पे हमको 2 into 3 is equal to 0, but neither 2 is equal to 0 nor 3 is equal to 0. So this is not a field, right? That means these are presence zero divisors. These are presence of zero divisors, right? So can we say in general Zn is a field if what happened? If and only if n is what? What about Z7? Will it be a field? Yes. Z8? No. Okay, correct. Z9?
नहीं होगा, राइट? सो When यू कैन, it is prime, then it is a field. हाँ, when n is a Prime. prime number, correct. So when n is a prime number, then only it is a field. This is a important theorem. हालांकि मैं इसका प्रूफ तो नहीं दे रहा हूँ, but maybe I think you know it from your discrete math course somewhere, sometime you might have done, right? Okay, so now that means if we list n की values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on. 2 के लिए फील्ड है, 3 के लिए फील्ड है, 4 के लिए नहीं है, 5 के लिए है, 6 के लिए नहीं है, 7 के लिए है, 8 के लिए नहीं है, 9 के लिए नहीं है, 10 के लिए नहीं है, 11 के लिए है, 12 के लिए नहीं है, 13 के लिए है, राइट? Zn ऐसे फील्ड बन जाएगी. सो मेरा फर्स्ट नॉन ट्रिवियल केस है 4. Okay, so now I'm again back to the same question. How do we construct a field with 4 number of elements? Any idea? So do we have to exclude an element from the set? कुछ तो करना पड़ेगा. मेरे को कुछ आइडियाज थ्रो करो तो फिर मैं बताऊं कि कैसे करना है. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. 4 एलिमेंट का कैसे कंस्ट्रक्ट करें, राइट? अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको. आपको ये मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड रियल नंबर्स की फील्ड से कैसे कंस्ट्रक्ट करी थी? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ था? एनी आइडिया? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? C is equal to a plus ib such that I is equal to square root of -1, right? And where a and b belongs to reals, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So यहाँ पे I क्या है? I का एक रोल है important. So let us recall complex numbers. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने रियल्स पे थे, ठीक है, और रियल्स पे हमें एक इक्वेशन ऐसी मिल गई x² + 1 = 0 which has no root on reals, right? इसका कोई रूट नहीं है यहाँ पे रियल्स में. Then people started thinking अब क्या करें? So what they did, they extended real. So they said that suppose I is the root of this equation, that means I² + 1 = 0, ठीक है, और इस I रूट को लेकर के हमने R पे अटैच कर दिया. उसको अटैचमेंट बोलते हैं ऐसे. Ri = a plus ib such that a and b are reals and I² + 1 = 0. That means I is equal to square root of -1, right? This is how we construct the complex numbers. अब हमको इसी आइडिया को लेना होगा और आगे बढ़ाना होगा. तो हम ग्राउंड फील्ड लेते हैं अब की बार Z2. ग्राउंड फील्ड लेते हैं Z2, इंटीजर मोडुलो 2. इसमें क्या एलिमेंट्स हैं? 0 और 1, राइट? हमने देखा ना 0 1 की फील्ड है. अब हम जरा यहाँ पे डिग्री 2 थी, ठीक है, हम डिग्री 2 की इक्वेशंस लेते हैं. तो डिग्री 2 की मोस्ट जनरल इक्वेशन क्या बन सकती है? ax² + bx + c = 0, where a is not equal to 0, and of course a b c belongs to Z2. ये होगा, राइट? अब a 0 नहीं है तो a की वैल्यू या तो 0 है या 1 है. तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो सकती है. तो हमें इक्वेशन मिल गई x² + bx + c = 0.
where B and C belongs to Z2. Correct? Now what can I? So that means now B की कितनी वैल्यूज हैं? 2, 0 या 1. C की कितनी sir. वैल्यूज हैं? 2, 0 और 1. तो टोटल नंबर ऑफ कितनी इक्वेशंस बनेगी? 4. 4 इक्वेशंस बनेगी. गुड. हम चारों लिख लेते हैं. पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. और एक ही क्वेश्चन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. करेक्ट? Yes, sir. 4 इक्वेशन बनी. तो पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या इसका कोई रूट है Z2 के अंदर? Z2 के दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1. कोई 0. रूट? हाँ, 0 इज अ रूट. करेक्ट. Yes. तो ये इक्वेशन हमारे लिए काम नहीं करेगी. ओके, टेक दिस इक्वेशन. इसका कोई रूट है Z2 में? 0 है. 0 इज ए रूट. राइट. ये भी काम नहीं करेगी. इसका कोई रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का? 1 1 इज ए रूट. करेक्ट. बिकॉज 1 प्लस 1 प्लस 1 इज नहीं 1. plus 1 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 हो जाएगा. then 2 when we 0. divide by 2 then it's एक मिनट. 1 1 यस. ओके. 1 रूट आएगा? 1 तो रूट नहीं आएगा ना? No, sir. So are we using modulo 2 also? Yeah. हाँ, modulo 2. एवरीथिंग इज modulo 2. Then it's getting its roots. विच रूट? 1, sir. कैसे? So x square plus 1 में अगर x की जगह 1 होगा तो 1 plus 1 2 हो जाएगा. 2 mod 2 0 हो जाएगा. हाँ, तो इसका तो रूट है ना इसका. जी sir. तो ये नहीं है. राइट. Yes, sir. ठीक है. So we are left with x square plus x plus 1 is equal to 0. इसका कोई रूट है क्या Z2 में? no sir. No root. No, sir. So this is what we want actually. अब आप देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. राइट. इसका कोई रूट नहीं था रियल्स में. राइट. Yes, sir. और यहाँ पे हमको वैसी इक्वेशन मिल गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच हैज नो रूट. राइट. इन द ग्राउंड फील्ड. इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम. राइट. ठीक है. तो हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने मान लिया इसका कोई रूट है. वहां पे हमने क्या माना था? I इज अ रूट ऑफ दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. राइट. तो यहां पे हम मानेंगे सपोज अल्फा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is equal to 0. Of course, alpha is not in Z2, right? So that means we have alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0, right? Correct? Yes, sir. Now, हमको अरे क्या हुआ? 1 minute. Okay. So now what we need to do here, हम इस फील्ड का नाम रखते हैं ZF4, फील्ड विथ 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके. विल बी A प्लस IB होता था ना, IB की जगह अल्फा B, such that A and B belongs to Z2 and alpha square plus alpha plus 1 is equal to 0. Do you agree? Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही हमने किया ना जैसे कॉम्प्लेक्स के लिए किया था. राइट. इसका मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे? A और B की वैल्यू 0 और 1 है. 0 हो गया, 1 हो गया, अल्फा हो गया, 1 प्लस अल्फा हो गया. 4 एलिमेंट हो गए. जी सर. नाउ 1 प्लस अल्फा इज ऑल्सो नथिंग बट, यहां से क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1. ठीक है. करेक्ट. yes.
Now 1 plus 1 is 0. Modulo 2 है ना Z2 में. 1 plus 1 is 0. 0. That means 1 is equal to minus 1. So this is nothing but alpha plus 1. So this is 1 plus alpha is equal to alpha square. ठीक है. अब हम इसकी टेबल बनाते हैं एक्चुअली. तो पहले हम टेबल बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर. 0 प्लस 0 कितना होगा? 0. 0 प्लस 1 1. 0 प्लस अल्फा अल्फा. 0 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 0 1. 1 प्लस 1 कितना होगा? 2. मॉडुलो 2 क्या हो जाएगा? 0. 0. 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. करेक्ट. बिकॉज यहां से आ जाएगा ना 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो इस इक्वेशन से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा बराबर अल्फा बराबर अल्फा. राइट. सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई? अल्फा. राइट. Hello, sir. ओके. Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो. So how did a negative of alpha plus 1 become alpha plus 1? Because 1 plus 1 is equal to 0. Right? So it didn't get clear in my head. हाँ So it didn't get clear in my head. Can you explain? हाँ मैं बताता हूँ. तो एक्चुअली ये हम किस पे डील कर रहे थे? Z2 पे है ना. Yes, sir. Z2 में क्या है? 1 plus 1 is equal to 0. Yes, sir. So 1 is equal to minus 1. Okay, okay, sir. Okay, sir. Got Okay, it? sir. थोड़ा Yes, sir. सा अजीब है, बिजार है, बट समझ में आएगा. Got it, sir. Yes, sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about the next one? Alpha plus 0 is कितना होगा? Alpha. Yes, sir. Alpha plus 1 कितना होगा? बताओ. Alpha square. अल्फा स्क्वायर. अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? Alpha. 2 0. अल्फा. 0. 0. और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा? 1. तो 1 होगा. 1. वेरी गुड. अल्फा स्क्वायर प्लस 0 कितना होगा? अल्फा स्क्वायर. Alpha square. अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? Alpha. Alpha. अल्फा. Alpha. अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना होगा? 1. 1. 1. और अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना होगा? 0. 0. 0. वेरी गुड. अब आपको समझ में आने लगा है इसकी पूरी गणित. राइट. नाउ वी गो टू मल्टीप्लिकेशन. 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर. 0 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर. 0 0 0 0 मल्टीप्लिकेशन 0 से तो सिंपली होगा. 1 into 1 will be 1. अल्फा अल्फा स्क्वायर ये भी हो गया. 0 हो गया. अल्फा हो गया. अल्फा इंटू अल्फा कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर. राइट. अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हुआ? अल्फा क्यूब. Yes, sir. अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बताओ? Alpha into alpha square अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस अल्फा. plus Right? 1. Yes, ये sir. कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. Yes, sir. और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा? 1. राइट. बिकॉज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Yes. तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है. और अल्फा स्क्वायर इंटू 0 इज 0. अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इज अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इज अल्फा क्यूब विच इज 1. and alpha square into alpha square is alpha raised to power 4 which is alpha cube into alpha. alpha cube 1 है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा. Got it? जी sir. जी sir. समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट इट? थोड़ा सा बिजार है बट इंटरेस्टिंग है. थोड़ी सी प्रैक्टिस लगी हो जाएगा सर. हो जाएगा ना. थोड़ा सा नई चीजें हैं. ये पढ़ी है पहले? सर थोड़ा बहुत मैप हो रहा है पीछे से पर हो रहा है. ओके.
तो यहाँ पे अब हम बिल्कुल उसी तरीके से 0 को एनसर्किल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, 0 का इनवर्स 0 है, 1 + 1 = 0, 1 का इनवर्स 1 है, अल्फा का इनवर्स अल्फा है और अल्फा स्क्वायर का इनवर्स अल्फा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। तो एवरीथिंग इज ओके हियर। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 हमें देखना है सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स है कि नहीं। तो 1 × 1 = 1 विच इज फाइन। अल्फा × अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अल्फा और अल्फा इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, राइट। राइट, तो हर एक का इनवर्स हो गया। सो दिस इज ए field, right? Yes, sir. Any question about this, so you can ask, then otherwise I will give you some more basic things. Interesting है। ज़्यादा सर। अब तुम देखो, इसमें मैं तुमको और मजा दिखाता हूँ। तो इसमें क्या आया, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट। मतलब क्या हो गया, अल्फा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। Yes, sir. बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तुमने सुना है फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा 1 + ω/ω² वाली। हाँ वही तो। Yes. हाँ, अच्छा मेरा प्रश्न ये है कि ओमेगा और ये अल्फा सेम है कि अलग अलग? बहुत सेम फंडामेंटल है, क्वेश्चन है। हाँ? सेम है हाँ, कौन बोल रहा है सेम है? सर। अजीत। अच्छा, और आशीष और कोमल का क्या मानना है? सर ये एक ही वेरिएबल से दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोनों इसी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो मे बी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रही हो। ये आशीष हाँ बोल रहे हैं ना? यस, हाँ, तो तुम्हारा कहना मतलब ये दोनों अलग है, हाँ या सेम है? मतलब रिप्रेजेंट दोनों इक्वेशंस को इसी मतलब ये एक ही वेरिएबल दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मे बी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही हो। अच्छा, कोमल का क्या मानना है भाई? थिंक सर सेम ही है। एनीवे, तो मैं बताता हूँ, सही आंसर यही कि दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पूछो क्यों? क्यों सर? क्यों सर? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होती है ना, यू रिमेम्बर? हाँ सर। यस। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं है ही नहीं, ओके ओके। यहाँ तो कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये दूसरी दुनिया है, ओके ओके सर। राइट। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यू नो, नो कॉम्प्लेक्स नंबर, नथिंग। वहां तो ओमेगा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में थी, सो वी नो द वैल्यू, राइट। एक्चुअली दिखता बिल्कुल वैसा ही है, राइट। इक्वेशन भी वही है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन वहां ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स नंबर में हम निकाल सकते हैं ना, यस सर। पर यहाँ नहीं निकाल सकते। आप समझ गए? तो दिस इज डिफरेंट। ब्यूटीफुल है कि नहीं ये? सर बहुत ज्यादा। मजेदार है ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल फील्ड विद 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको इसमें। अब आप देखो, ये जो एंट्रीज थी ना, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, इस जगह पे 0 के लिए 0 0, राइट। यहाँ पे ए को 0, बी को 0 रखेंगे तो 0 आएगा ना। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लें, 1, और बी की वैल्यू 0 लेंगे तो ये मिलेगा, राइट। यस सर। यहाँ से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 0 लेंगे, बी की वैल्यू 1 लेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ पे दोनों को 1 1 लेंगे तो ये मिलेगा, राइट। यस सर। So actually, all these elements of this field can be expressed as a binary vectors. Okay, so field can also be expressed by binary vectors. So basically, I am saying that we have elements GF4 can also be expressed as 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, with all the things that you have, you know. So अब अगर हम तुमसे पूछें स्क्वायर रूट ऑफ 0 1 निकालो तो क्या होगा, बता सकते हो?
0 1 क्या है, पहले तो ये देखो, अल्फा है, What? राइट। तो हम पूछ रहे हैं अल्फा की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। Alpha square. अब हमको ये मालूम है अल्फा क्यू बराबर 1 है, Alpha और square. अदरवाइज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसी का इस्तेमाल करके कुछ कैलकुलेशंस करके हमको निकालना पड़ेगा अल्फा की पावर वैल्यू, राइट। तो आप क्या बोल रहे हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? Alpha square. अगर हम अल्फा स्क्वायर करें, मान लो अल्फा, तो बेसिकली यू आर सेइंग दैट अल्फा इज टू दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 4, राइट। एंड दिस इज अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, राइट। करेक्ट, तुमने अच्छा निकाला। इसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब अल्फा स्क्वायर इज 1 1 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 1 इज इक्वल टू 1 1। कैसा लग रहा है देखने में? तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा है हाँ सर। इंटरेस्टिंग। सो इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। हम अगर बोले Yes. तुमको 1 1 डिवाइडेड बाई 1 0 कितना है? 1 1 क्या है, अल्फा स्क्वायर, और 1 0 क्या है, 1 है। तो Alpha ये square. 1 है बराबर अल्फा स्क्वायर, मीन्स दिस इज व्हाट 1 1। अब समझ रहे हो ना अर्थमेटिक कैसे हो रही है? हाँ, सो एक्चुअली ये जो अर्थमेटिक कर रहे हैं हम, ये बिट्स के ऊपर कर रहे हैं, ओके। ये थोड़ी अर्थमेटिक अलग है। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है फील्ड विथ 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम अब आगे जाए टेबल में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी कंस्ट्रक्ट फील्ड विथ 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद दिस मेथड। 4 का तो हमने कर लिया, राइट। 6 कर पाएंगे क्या? एनी आइडिया? 6 मतलब 6 नंबर की फील्ड बना पाएंगे क्या? ओके। 4 की तो बना लिया ना, 4 वी हैव हाँ कंस्ट्रक्टेड 4। व्हाट अबाउट 6? थोड़ा विचार करो, कोशिश करो कि 6 का बनाने की कोशिश करो, बाद में तुमको पता लगेगा 6 का बनाना मुश्किल है, नहीं बन पाएगी, ओके। तो एसेंशियली हमको करना क्या है, व्हाट आई एम आस्किंग कि इस तरह की टेबल बनाओ। ये तो Z4 की है, इस तरह की जैसे हमने 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बनाई है, ऐसे ही 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लो और उनके ऑपरेशंस करने की कोशिश करो कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स हो और हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो फील्ड बन जाएगी, राइट। तो हम 6 में कोशिश करेंगे तो नहीं बन पाएगी, okay. So there is a reason why this is there, but anyway, now I think I should briefly mention to you that so यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात ये थी कि GF4 is nothing but GF2 square, okay. और ये 2 है सेम 2, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का 2, ये वाला 2। तो जितनी डिग्री लेंगे हम पॉलिनोमियल की, उसी पावर में हम फील्ड कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो 6 वाली तो हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट चॉइस इज फील्ड विद 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। 8 के लिए क्या करेंगे, मैं तुमको दिखाता हूं तरीका। लेट अस टेक, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट फील्ड विद 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, that means CF3Q, okay. So now I will take a equation ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, right, where a is not equal to 0.
and A, B, C, D belongs to Z2. Right? Okay. So now A तो 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ठीक है? राइट? Yes. B के 2 चॉइस हैं, C की 2 चॉइसेस हैं, D की 2 चॉइसेस हैं. टोटल चॉइसेस कितने हो गए? 8. 8. So now we have 8 equations in front of us. अब I think I will leave it here now. मैं चाहता हूं कि तुम लोग जरा कोशिश करो 8 नंबर ऑफ फील्ड्स, मतलब फील्ड विद 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने की. ठीक है? ठीक है? एज एन एक्सरसाइज हम अगली क्लास में फिर आएंगे और नहीं तो पूरा कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे. राइट? ठीक है ना? सो आई थिंक 8 इक्वेशंस लिखो टोटल. यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन काम कर रही है. ठीक है ना? x cube plus x plus 1 will work. हाँ, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 विल वर्क. एक और इक्वेशन काम करेगी. एक्चुअली यहाँ पे 2 इक्वेशन काम करेंगी. तब क्या करें? हाँ भाई राइट? सो 2 इक्वेशंस काम करेंगी. एक एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Yes, sir. अब किससे बनाए फील्ड? ठीक है? तो कोशिश करो दोनों से बनाने की. कुछ लोग 2 लोग जो है ना उससे बनाओ, 2 लोग उससे बनाओ और मेरे को बताओ कि क्या हुआ. ठीक है ना? सो वी विल डिस्कस अगेन. ठीक है? ओके. जी सर. ठीक है. तो बस इतना ही बताना था. आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग. मेरे ख्याल से तुमको इंटरेस्टिंग लगा हुआ ये आइटम. सो वी कैन सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. जी सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. सर जो GF हमारा नोटेशन है उसका क्या मतलब है? क्या? हाँ, जीएफ का मतलब है गालवा फील्ड. इवारिस गालवा ने 18-19 साल की उम्र में इसकी डिस्कवरी करी थी. इवारिस Okay. गालवा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली. व्हेन यू नो he was about to die actually. एक दिन पहले उसने ये सब लेटर में लिखा और अपने एक दोस्त को भेज दिया और अगले दिन वो उसने लड़ाई की और उसमें मारा गया. तो Okay. आई थिंक देयर वाज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली. तो यंग एज में वो मर गया बट ही डिड ऑल दिस डिस्कवरीज. ही रोट एवरीथिंग एंड सेंड इट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड. इसीलिए उसके नाम से गालवा फील्ड बोलते हैं इसको, इवारिस गालवा. ओके. Okay, sir. ओके. सो सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास. एंड कोशिश करो कि 8 के लिए क्या होता है सो दैट वी कैन डिस्कस इट स्मूथली. ठीक है? जी सर. Thank you, sir. सर आपने आज बस एक ही काम दिया कि 8 के लिए कितना होगा वो देखने के लिए. हाँ, 8 के लिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा तुम करके देखोगे तो मजा आएगा. एक्चुअली हम लोग आमने सामने होते तो अच्छा लगता ना. तो हम लोग डिस्टेंस पे हैं. सो देयर इज, आई मीन दिस इज द ओनली वे. तुम करके आओगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा. ठीक है? जी Right, सर. right. ठीक. ओके. ओके. थैंक यू. Thank you, sir.